Good evening, everyone. This is CA Kedar Pandey. Uh, welcome, Neha Datta ma'am. And for the benefits of the students, we have started this Sunday study circle sessions. Presently, for branch committee, we're already taking sessions on every Saturday for the benefits of the member. It's the first of its kind program for the benefit of the students where we are covering academic, non-academic, every session for the benefit of the student. Today, it's the first session or first study circle meeting, and we have with us CA Neha Datta. I'm sure every participant will be benefited from her session. And without wasting much time, I'll hand over charge again to Sanika. Sanika, please go ahead. Yes. Additionally, I request Apeksha to provide the heartfelt introduction for CA Neha Datta ma'am, who brings invaluable expertise and insight to our discussion today. Okay. Before starting, I would request everyone to please mute yourself. Hello, everyone. I'm extremely delighted to have the CA Neha Datta with us today. Ma'am, Hello, ma'am. there's a reason why I'm calling you the CA Neha Datta. Just like thousands of the students out there, I am also your huge fan. So, guys, hold on to your seats because we are about to witness something truly extraordinary. A chartered accountant, a mentor, public speaker, and mindset coach. She has also been invited to Josh Talks. Through her virtual sessions, she has not only shared her expertise but also provided invaluable mental support to CA students, igniting their passion and belief in themselves. A person who is the epitome of simplicity and kindness. Ma'am, your genuine nature and down to earth personality makes you a true gem. A heartiest welcome to ma'am. So glad to have you here. I request ma'am to take over the charge. Thank you. Thank you so much for a wonderful introduction. Just let me know, am I perfectly audible and visible? Yes, Am I yes. audible and visible? Yes. Perfect. Before I begin, I request everyone to please turn off their mics and turn on their cameras. Please. Can we switch it to gallery view so that I can see everybody? Cameras on, please. ना आई नो आपको लगेगा कि भी एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी हम रेडी होकर भी कहाँ बैठे हैं जो हम कैमरा ऑन करेंगे। तो इतने कॉन्शियस है हम अपनी खुद की शक्ल हम शीशे में नहीं देखते हैं व्हेन एग्जाम्स आर अप्रोचिंग कि हम कहाँ, हमारे बाल भी नहीं बने हुए, हम कोम नहीं करें ठीक से, अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं है। ट्रस्ट मी, हर किसी का यही हाल है। बिन देयर डन दैट, सबका सेम है। तो इतने ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। कैमरा ऑन कर लीजिए। बाकियों को भी आप स्वाइप करके स्लाइड करके देख सकते हो ना, सबको देख लो, सब एक जैसे दिख रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए, मुझे हंसते हुए चेहरे देखना बहुत ही पसंद है। म्यूट आई गेस अभी सब नहीं हुए हैं। अपेक्षा, क्या हम अपनी साइड से सबको म्यूट कर सकते हैं क्या? मुझे ही म्यूट कर दिया अपेक्षा। आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए और मुझे अनम्यूट रहने दीजिए बस। And just do let me know when it's done. Done? हाँ, अभी साइलेंस सा फील हो रहा है। Perfect. There are so many familiar faces here. बोलने वाले इतने सारे कैमरा बंद क्यों है? Take a minute please and turn on your cameras, please. Although we know topic for the day is stress management, एग्जाम्स आ रहे हैं, मतलब सीए स्टूडेंट्स और स्ट्रेस एग्जाम्स का एक अलग ही खूबसूरत सा रिश्ता है। रिश्ता क्या कहलाता है हमको भी नहीं पता, पर कुछ तो कहलाता है। और वो हर बार जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं तो हमें ऐसे कुछ अजीब सा फील होता है। उसके लिए फिर ब्रांच एक सेशन ऑर्गेनाइज करती है कि बच्चे एकदम पंप अप चार्ज अप रहे। तो ये हमेशा का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ब्रांच फॉर हैविंग मी हेयर टुडे। प्लेजर बीइंग हेयर। एंड आप सब अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं सेशन में, सो आई होप आई एड सम वैल्यू टू योर डे। ऑन दैट नोट,
लेट्स बिगिन। बिफोर आई प्रोसीड विद द सेशन, मुझे ये बताइए कि सीए फाइनल का कौन है, इंटरमीडिएट का कौन है, और उससे फाउंडेशन का भी कोई है क्या? सो जस्ट प्लीज डू लेट मी नो हियर, ताकि मुझे कैटेगरी पता चले, समझ आए। इंटर, सीए फाइनल, फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, फाउंडेशन, इंटर, इंटर, फाइनल, मिक्स एंड मैच। जल्दी 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 लिखो, जल्दी जल्दी। फाइनल, फाइनल, बहुत सारे फाइनल के बच्चे। फाइनल, इंटर, ओके, सीएस, इंटर। इंटर और फाइनल के ज्यादा बच्चे हैं। ओके, मैं तो कुछ चीजें बताऊंगी ही, पर आपका क्या एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर कोई है, दैट विल गिव मी अ डायरेक्शन फॉर द सेशन एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू फोकस ऑन दैट सेगमेंट स्पेसिफिकली। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई एक चीज आपको बॉदर कर रही है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं बिफोर वी गेट इनटू द सेशन। प्लीज टेक अ मिनट एंड डू लेट मी नो वट एवर क्वेरी यू हैव फॉर द डे। अच्छा, एग्जाम्स कब से आ रहे हैं? मैं ना अपडेटेड नहीं हूँ थोड़ा सा, तो एग्जाम्स कब से है मुझे वो भी बता दीजिए। टेंशन बहुत होती है एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। ओके, सेकंड से है। बोथ ग्रुप्स का प्रेशर कैसे हैंडल करें? 20 से है फाउंडेशन के, फाइनल के सेकंड से है, 2 मई से, राइट? फर्स्ट रीडिंग ही चल रही है, इसका टेंशन है। हाउ इट इम्पैक्ट्स यू व्हेन यू आर गोइंग टू एग्जाम अनप्रिपेयर्ड, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। ओके, थर्ड में, सो सेकंड और थर्ड में से एग्जाम्स है, सो अज्यूमिंग दैट आई एम प्रोसीडिंग विद द सेशन। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं देख रही हूँ, नाउ आई विल प्रोसीड विद द सेशन। और जो भी क्वेश्चन के मैं जब मैं पूछूंगी तो आंसर के लिए मैं सिर्फ चैट बॉक्स देखूंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो एक चीज सबके दिमाग में है, एक तो ये होगा कि मेरा तो शायद सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, एग्जाम का दिन आने वाला है पास, और मुझे ना ऐसे कॉन्फिडेंस जैसा फील नहीं हो रहा है। अब जो पहली बार पढ़ रहा है उसको ये चीज फिर भी कम लगती है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कंपेयर टू समबडी जो पहले अटेम्प्ट दे चुका है। उसको ज्यादा लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, जबकि वो स्टूडेंट और पहले भी पढ़ चुका है, उसने पहले भी पढ़ा है। क्योंकि जिसको अटेम्प्ट लगा है, यहाँ कितने लोग को अटेम्प्ट लगा है? प्लीज डू लेट मी नो दैट। हाँ, आप अपने ऐसे वाले हैंड्स भी रेज कर सकते हैं, या वर्चुअल भी कर सकते हैं, या लिख भी सकते हैं। मी करके बहुत सारे लोग ने लिख दिया है वैसे यहाँ पर। तो जो पहली बार देता है उससे भी ज्यादा टेंशन उसको हो रही है जो पहले दे चुका है, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल भूल गया है कि मैं पहले पढ़ के आया हूँ, मैंने पहले क्लास में पढ़ा है, फिर उसके बाद मैंने क्लासेस खत्म होने के बाद एक बार पढ़ा होगा, फिर मैंने एग्जाम से पहले पढ़ा होगा, फिर मैंने एग्जाम से वन डे पूरे एग्जाम पढ़ा होगा, फिर उसके बाद मैं दोबारा से, मतलब 4 बार पढ़ने के बाद मैं 5वीं 6ठी बार पढ़ रहा हूँ उसको, तब भी वो और ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल राइटिंग मी अटेम्प्ट वाला। ओके, तो सबसे पहला चीज जो ये जो होता है कि मुझे ना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, मैं आपको एक राज की बात बताती, लेट मी ब्रेक इट फॉर यू टुडे। आपको कभी भी, लाइक इवन इफ इट्स अ डे ऑफ एग्जाम, आपको तब भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा कि मेरा पूरा 100% सिलेबस हो गया, आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज तो पता नहीं क्या ही मैं बढ़िया लिख कर आऊंगा। ऐसा फीलिंग आपको अंदर से कभी भी नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आता है। जिसकी रैंक भी आ रही होती है, जिसकी रैंक भी आई है, उसको भी वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये आपको सिर्फ ऐसा मन में लगता है कि मैं ना मॉक टेस्ट भी किसी एक दिन लिखूंगी या लिखूंगा जिस दिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, जिस दिन मेरे को एकदम प्रिपेयर्ड फील हो रहा होगा। आप उस एक दिन का वेट करते रह जाएंगे। आपने मॉक टेस्ट लिखा है अभी? कितने लोग ने मॉक टेस्ट लिखा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग मॉक टेस्ट? नो, आयुषी सेड नो, शी इज नॉट राइटिंग। प्राची नॉट राइटिंग। नो नो नो, सारे नो 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 वाले लोग मॉक टेस्ट नहीं लिखा। आई कुड सी ओनली वन गेस, राजश्री, खुशी, खुशी ने भी लिखा है। बाकी ऊपर ज्यादातर वो है जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिखा है। और मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था। मैं एक चीज बता दूं, अगर आप जस्ट इमेजिन यू आर जस्ट ईटिंग ईटिंग एंड नॉट चेकिंग आर यू इवन डाइजेस्टिंग और नॉट, तो क्या होगा? यू विल मेस अप विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको अगर कॉन्फिडेंट फील करना है, उसका एक हैक यही है, एक मॉक टेस्ट उठाओ। मतलब हिम्मत लगेगी, बहुत ज्यादा करेज लगेगा। हम पता है मॉक टेस्ट क्यों नहीं लिखते हैं, और ये हमें हमें लग रहा है कि ये हमें अच्छा फील होगा ना मॉक टेस्ट नहीं लिखेंगे तो। अगर हम मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लिख रहे कि मानो मैंने मॉक टेस्ट उठाया और मैं रिकॉल करके आंसर नहीं लिख पाई, तो मुझे टेंशन हो जाएगी, और 15 दिन पहले एग्जाम के आई कैंट अफोर्ड टू बी इन टेंशन। एम आई राइट और नॉट?
अगर मुझे रिकॉल नहीं होगा तो मेरे को टेंशन हो जाएगी, जो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी बना है वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में खुद को डालना ही क्यों है, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिखा। मैंने एक महीने पहले भी यही सोच के मॉक टेस्ट नहीं लिखा, मैंने 2 महीने पहले भी यही सोच के मॉक टेस्ट नहीं लिखा, और ऐसे करते करते मैं एग्जाम वाले दिन पे पहुंच जाऊंगी और मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिखा, क्योंकि मैं जो अपना थोड़ा सा ऐसा फेक सा कॉन्फिडेंस बना था मैं उसको तोड़ना नहीं चाहती थी। राइट, इतने सारे लोगों ने राइट और एग्जैक्टली लिख दिया है। बिन देयर डन दैट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मेंटोर वहीं से चल कर आया है पूरा का पूरा। पर पता है इसका एक हैक यही है, आपको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ना खुद को सिचुएशन में डालना पड़ता है जहां आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ब्रेक हो, ताकि आपको रियलिटी चेक मिले। अटेम्प्ट लगने की सबसे बड़ी वजह ही यही होती है कि हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं, मतलब बुक खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, एक बार भी रुक कर ये चेक नहीं करा कि मैंने जो पढ़ा क्या मेरे दिमाग में फीड हुआ, क्या मैंने रिकॉल करा। किताब बंद करके आप में से कितने लोग रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि मेरे को क्या याद है, मैंने क्या पढ़ा पिछले 1 घंटे, मैंने पिछले 15 मिनट क्या पढ़ा? कोई रिकॉल करता है क्या? एवरीबडी इज जस्ट स्टडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग, एक बार भी रुक के नहीं देखते हैं। नहीं लिख रहे थे बिकॉज यू आर हैविंग अ कॉन्फिडेंस, और आप नहीं चाहते थे आपको कॉन्फिडेंस हैम्पर हो जाए, इसलिए आपने मॉक टेस्ट नहीं लिखा। इसी वजह से आप अब रिकॉल भी नहीं कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, जिसका भी जैसे आपके जो भी थ्योरी टाइप सब्जेक्ट है, थ्योरी में इट इज लॉ, ऑडिट, या फिर आप टैक्स के कोई प्रोविजंस रिकॉल कर रहे हैं, या फिर आप कॉस्टिंग और एफएम में कुछ जो थियोरेटिकल चैप्टर्स होते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसा कुछ जो आप रिकॉल कर सकते हैं, मतलब जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। इसके अलावा वाली जो भी चीज है, आपने किसी भी फैकल्टी से क्लास ली हो, आपने कोई ना कोई तो आपको वो रिविजनरी वीडियोस मिले होंगे। इज इट सो? आपके पास होंगे, रिविजनरी वीडियोस होंगे, वो बहुत बहुत आवर्स के जो एक्यूमुलेटेड रिविजनरी वीडियोस होते हैं। अब आपको क्या करना है, यूजुअली आप उनका यूज कैसे करते हैं कि आप उनको चला लेते हैं और आप उन्हें सुनते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप उसे 2x पर सुने, पर पता नहीं कैसे ही 2x पर सुनने के बाद वो और ज्यादा 0.5 की स्पीड पे चला जाता है। ऐसे लगता है कि वो 2x पे 1 घंटे का वीडियो 2x पर चलाया था, अब वो 4 घंटे का हो गया, क्योंकि 2x पे वीडियो तो चल रहा था पर आपका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था ना। सो यू मिस द पॉइंट। आपने टाइम बचाने के लिए उसको 2x पे करा था और आपका टाइम डबल ट्रिपल लग रहा है। अब आपको उन वीडियोस का यूज कैसे करना है, आप इतना ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, मैं स्टूडेंट रही हूं और पूरे उस जर्नी से आई हूं। मैं आपको आपके बिहाफ पर एक चीज बता रही हूँ, ऐसा सिर्फ आपको लग रहा है कि आपने जो भी पीछे पढ़ा है वो आपको याद नहीं आ रहा है, जैसे जैसे एग्जाम के दिन पास आ रहे हैं आपको लग रहा है कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आप भूलते जा रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं है। पर ऐसा नहीं है। जब आप उस 3 घंटे में बैठे होते हो शांत दिमाग के साथ, जब पेपर लिखते हो, तो कई बार आपको ऐसा लगा कि आपने जो क्लास में टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया था आपको वो भी क्लिक करता है और आप लिख पाते हो। तो ऐसा थोड़ी है अपने दिमाग में कुछ, सबसे पहले तो प्लीज अपने आप में ये चीज फिक्स करो, ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग में कुछ डाला और कहीं तो होल था वो निकल गया दिमाग से बाहर। ऐसा है क्या? समझ कह रहे हाँ, आर यू अग्रिंग और डिसअग्रिंग टू व्हाट आई एम सेइंग? नहीं है ना ऐसा। ऐसा दिमाग में छन्नी थोड़ी लगी है, छलनी, यू अंडरस्टैंड, तुम्हें कुछ डालो और वो नीचे से निकल जाता है। ऐसा दिमाग में कोई सिस्टम नहीं है। आपने जो भी डाला है, आपने क्लास में पढ़ा उसको, उसके बाद आपने खुद रिकॉल करा होगा, किसी फ्रेंड ने तो आपको कोई टॉपिक समझाया होगा, आपने रिविजनरी वीडियो में सुना, सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर है। तुम्हें एक चीज, एक एफर्मेशन ना प्लीज शांति से बैठ के इसको करना। स्ट्रेस हटाने का तरीका यही है कि यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प योरसेल्फ। मैं आऊंगी सेशन में बोलकर चली जाऊंगी, अल्टीमेटली आपने खुद के साथ ही रहना है अगले 15 दिन, 20 दिन और थ्रू आउट योर लाइफ। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस सेशन इज, प्लीज नोट इट डाउन। एक एफर्मेशन लिखें। एक तो जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, ठीक है, शांति से बैठ जाएं, टेक अ डीप ब्रेथ, और धीरे धीरे डीप ब्रेथ लेके खुद को पहले शांत कर लें, और आंखें बंद करके खुद को एक चीज बोलें कि मैंने आज तक जो भी पढ़ा है, आई नो दैट इज स्टोर्ड डीपली इन माई मेमोरी, और जब भी मुझे वो रिकॉल करना होगा एग्जाम के 3 घंटे में, माई माइंड विल रिकॉल इट। आपको याद सब होता है। एग्जाम हॉल में ऐसा होता है ना कि आपको बाहर आकर लगता है कि मुझे ये आंसर आता था, मैंने उस टाइम, मेरे को क्यों याद नहीं आ रहा था, उस टाइम को लगता है बस ये एक लाइन एक वर्ड तो याद आ जाए कि तो पढ़ा है मैंने। बाहर आते ही कैसे याद आ गया, अंदर क्यों नहीं आ रहा था? आप वही हो, आपका दिमाग वही है, आपने पढ़ा वही है, क्या बदला एग्जाम हॉल में अंदर और बाहर में?
उस 3 घंटे में ना, और 15 दिन पहले जो आपको याद नहीं आता है, आपने खुद को बहुत प्रेशराइज कर रखा है। वो प्रेशर एग्जाम हॉल से बाहर आती है ना, वो मेंटल प्रेशर रिलीज हो जाता है। मेंटल प्रेशर रिलीज होते ही आपकी मेमोरी रिस्टोर हो गई। ऐसा हुआ किसी के साथ? जस्ट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या आप एग्जाम हॉल से बाहर आए और आपको सही आंसर याद आ गया? मेरे साथ होता है इन एवरी अटेम्प्ट। यस यस, हाँ हाँ, यस यस, यस, ऑलवेज यस, यस यस, मेनी टाइम्स, टू मेनी टाइम्स, यस मेनी टाइम्स मेरे साथ होता है। यस, आप में से ज्यादातर लोगों के साथ, जितने मैंने यस देखे हैं, मेजोरिटी लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों याद आया? आपका दिमाग तो सेम था ना। वो इसलिए क्योंकि आपने अपने दिमाग पर इस मोमेंट इतना ज्यादा प्रेशर डाल रखा है कि आप अपने एकदम जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है उस पर ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस की वजह से। नॉट बिकॉज यू आर स्टूपिड, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर लेजी, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आपसे तो कुछ होता ही नहीं, आप तो एकदम फेलियर हो। ये सब स्टूपिड रीजन है जो आपका दिमाग आपको बता रहा है और डाइवर्ट कर रहा है। आपको चीजें पता है, आपने पढ़ा है, आपका वही दिमाग है जिसने क्लास में बैठ के सब कुछ समझा, क्वेश्चंस करे, इतनी बार पढ़ा, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, उसको सुना। यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ रिकॉलिंग एवरीथिंग इन दोज 3 hours. What is stopping you is your stress और mental pressure you have created on your own. किसी ने नहीं दिया ये प्रेशर आपको, आपने खुद को ये प्रेशर दे रखा है। आपको मेजरली एक चीज जो करनी है, पढ़ाई वढ़ाई आपको सब पता है कैसे करनी है, इतने स्मार्ट आप हो, वरना यहाँ तक आते ना जहां तक पहुंचे हो। आप सिर्फ शांति से बैठ के खुद को ये बोले आंखें बंद करके कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे 3 घंटे में याद आ जाएगा, सब कुछ मेरी मेमोरी में स्टोर है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, जब भी एग्जाम का समय पास आता जाए, दूसरों को देखकर नई नई चीजें पढ़ने की कोशिश ना करें। और पेपर से एक दिन पहले तो ये स्टंट बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, नॉट एट ऑल। एक्सपर्ट की प्रेजेंस में भी ऐसे स्टंट नहीं दिखाने हैं कि वो जो ऐसा अचानक से आपको नहीं होता है कि कुछ नया पढ़ते हैं, दोस्त ने कहा है तुमने नहीं पढ़ा है तो अब मैं दिल आहत हो गई, अब एग्जाम सेंटर बाहर खड़ी होकर कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे? जो चीज मैं 6 महीने में नहीं पढ़ पाई, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि चलो आओ अब पढ़ते हैं? अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है, आप खुद को स्ट्रेस में डालते हो, और जो पढ़कर आए थे उसे भी खतरे में डालते हो, आप स्ट्रेस में रिकॉल नहीं कर पाओगे। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, बाकी आपको सब पता ही है ऑलरेडी। तो जो पढ़ा हुआ है आपने, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करें और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। सीए के एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली सीए के एग्जाम में, आपने कितना ज्यादा प्रपोर्शन में पढ़ा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने किस क्वालिटी में पढ़ाई करी है। सीए का सिलेबस, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नोबडी कैन डिनाई दिस फैक्ट। ये एग्जाम टफ है ही इसलिए क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। और जब आप इंडिविजुअली चैप्टर्स पढ़ते हो तो हमें सब याद आता है, हम सब रिकॉल कर पाते हैं। अभी आप इसे स्कूल टेस्ट जैसा कर दो, क्लास टेस्ट होगा, एक चैप्टर पढ़ेगा, उसका टेस्ट ले लो, हम सबके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। मार्क्स हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जब वो सारे मिल जाती हैं चीजें, सारे चैप्टर्स अब एक्यूमुलेट हो गए, अब पढ़ो उसे, अब रिकॉल करो, अब 3 घंटे में लिख के आओ, वहां पर प्रॉब्लम होता है। तो सिलेबस ज्यादा है, तो वहां ना सिर्फ हार्डवर्क काम नहीं आता है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। और इस मोमेंट, जितने दिन अभी बचे हैं, इसमें आपका स्मार्ट हार्डवर्क आप जितना कर सकते थे आपने किया है। अभी अभी आपको हार्डवर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क मैंने बहुत ज्यादा लगाया था, उसकी वजह से मैं उस अटेम्प्ट में पास हो गई। स्मार्ट वर्क मैंने ये लगाया कि मैंने देखा, देखो सिलेबस बहुत ज्यादा है, अभी करते हैं थोड़ा सा एबीसी एनालिसिस। मैंने थोड़ा शुरू में, मतलब 2 महीने पहले ये दिमाग लगा लिया था, तो मैंने सारा एबीसी एनालिसिस खुद करा था। उस अटेम्प्ट से पहले न्यू कोर्स में जितने पेपर आए थे, वो सारे पेपर, सब मॉक टेस्ट, सब आरटीपी उठाकर मैंने खुद से करा था। पर आप अभी, अब जो फैकल्टीज के एबीसी एनालिसिस के वीडियोस हो सकते होते हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हो इस मोमेंट पर। अभी अगर कोई आकर कहेगा नहीं आप ये गलत सलाह दे रहे हो, एबीसी एनालिसिस नहीं करना चाहिए, सारा पढ़ना चाहिए, सो आई एम टॉकिंग टू समबडी हु इज सो स्ट्रेस्ड आउट कि चलो अटेम्प्ट नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, अपना एंजाइटी कर रहे हैं खुद को कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, गिव अप कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल स्पेसिफिकली कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है यार। अभी भी गिनो अगर, तो कितने दिन, कितने का है अप्रैल? 30 तक का होता है ना, 15 दिन मान लो रफ यू, 15-16 days, लेट से 2 से चलो एग्जाम है, 16 days यू हैव इन हैंड।
और मैं तुमको नहीं सारी किताबें उठा के ले आओ, सब पढ़ेंगे, A to Z पढ़ के जाएंगे, तुम देखते हो भैया नहीं हो पाएगा, छोड़ो, बंद करो, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस टाइम पर, वो बात बताओ असली। अब कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि अगर आप मानो आप एक शब्द भी नहीं पढ़ा आपने, मतलब आपको क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, वैसे तो बहुत गलत बात है, ऐसा सिचुएशन होगा नहीं, बट स्टिल आई एम टॉकिंग हाइपोथेटिकली कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो भी क्या करो, पता तो सिलेबस तो होगा ना, किताबें तो ले आए होगे, रजिस्टर तो होगा, इतने का गुजरे तो होगी नहीं कि सीए पे आ गए कुछ अता पता नहीं है। ठीक, आप अब देखो इतने दिन बचे हैं, मेरे 4 सब्जेक्ट हैं। अब ये बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप मत पूछना मुझसे, ये आपको खुद डिसाइड करना है। अभी पूछोगे तो पढ़ाई नहीं करी तो बोलूंगी ना सिंगल ग्रुप ही, तो बोथ ग्रुप तो कहूंगी नहीं। तो लेट से आपने 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। अब आप ये देखो, सबसे पहले इमीडिएटली ये खत्म होते ही सेशन जाके पहले एबीसी एनालिसिस निकालो, फैकल्टीज ने डाल रखे होंगे, या आपने अगर पहले एग्जाम दिया तो आपको खुद पता होगा। इफ आई टॉक अबाउट सीए फाइनल टैक्सेशन, डीटी की अगर मैं बात करूं, सीए फाइनल, पीजीबीपी, मैट, टीडीएस और इंटरनेशनल के 1-2 चैप्टर्स अभी मेरे को दिए बहुत टाइम हो गया, सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। चैरिटेबल, ये कुछ कुछ थे चैप्टर्स जिसमें से आते ही आते हैं क्वेश्चन। मुझे पता है कि पीजीबी में से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक मैट का क्वेश्चन होगा ही होगा, टीडीएस में से 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, चैरिटेबल का 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता था। अब अगर मैंने इतने बड़े डीटी में से मैं चैप्टर्स थोड़े से मैंने एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग देख ली कि ए कैटेगरी तो मुझे पढ़ के ही जाना है, यूजुअली ए कैटेगरी कवर 75% मार्क्स, उसके बाद बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी आती। तो पहले आप उतना देख के ए कैटेगरी के चैप्टर्स निकाल लो हर सब्जेक्ट में। अब उस ए कैटेगरी में भी अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ स्मार्टनेस। मैंने ये देखा था, मैंने जैसे इफ आई टॉक अबाउट पीजीबीपी, मैंने पीजीबी उठाया, मैंने पीजीबी के सारे क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चन में मैंने देखा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट ईयर पेपर में। मैं एक एग्जांपल थोड़ा डिटेल में दे रही हूँ कि आप समझ पाओ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। मोटिवेशन देखो बहुत टेम्पररी बात है, ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। सो आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकलिटी जो आप कर सकते हो अभी। तो अगर मैं पहले एबीसी एनालिसिस करा हमने, एबीसी एनालिसिस से कुछ चैप्टर्स हटा लिए कि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो मैंने छोड़ना, मैं डिजर्व मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब उस चैप्टर को भी कैसे पढ़ना है अब मैं वो बता रही हूँ। तो मैंने पीजीबी देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीजीबी में मैंने सारे पेपर्स उठाकर देखा था पास्ट ईयर पेपर में कि इसमें से किस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो ज्यादा आ रहे थे वो जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि डिडक्ट में ये चीजें प्लस होंगी, ये चीजें माइनस होंगी। अब मैंने पीजीबी बहुत बड़ा चैप्टर है, चाहे वो इंटर में हो चाहे फाइनल में, काफी बड़ा है, बहुत सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारे सेक्शंस हैं। हर चैप्टर का ना हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसमें से भी देखना पड़ता है कि इंस्टीट्यूट, मतलब मैंने ये लॉजिक लगाया कि देखो पूरा चैप्टर है पीजीबी, इसमें से इंस्टीट्यूट ने एमटीबी में, आरटीपी में और पास्ट ईयर में कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे हैं। और मुझे हिम्मत कहाँ से मिली कुछ सेक्शन छोड़ दूं। मैंने कहा देखो जिस सेक्शन को इंस्टीट्यूट ने इज्जत नहीं दी तो मैं यार 15 दिन में नहीं दे सकती इज्जत, तो मुझे थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब मैं इंस्टीट्यूट पे अंधा विश्वास, बट जितने दिन बचे हैं उसमें। एंड आई एम नॉट समबडी जो कहे नहीं नहीं आईसीए की बुक्स को तो साइड रख दो, हम तो फैकल्टी वाली पढ़ेंगे। भाई मैं पास ही आईसीए वाली बुक्स पर भरोसा करके हुई हूँ। तो मैंने वो क्वेश्चन सारे उठाए, पास्ट ईयर पेपर्स में से देखे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एमटीपी आरटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमटीपी आरटीपी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैंने उसमें से पीजीपी के देखा कि एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें से मैंने एक समरी शीट बनाई, 2 पेज, मतलब एक पेज पे आगे और पीछे ये एडजस्टमेंट प्लस होती हैं, उसका रीजन लिख लिया हिंदी में, और नेक्स्ट पेज पे ये चीजें ऐड होती हैं, उसका रीजन लिख लिया हिंदी में। मेरा ये करने के बाद उसमें मुझे पूरा एक दिन लगा था पीजीपी में ये करने के लिए, पर उससे उस एक पेज ने मेरा पीजीपी इतना आसान कर दिया ना। वो पेपर पढ़ के ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन थे वो कुछ कॉमन एडजस्टमेंट थी वो उसी में ही हो रहे थे। हर क्वेश्चन में कोई एक आधी नई एडजस्टमेंट थी, बस वो मैंने वहां मार्क करके हिंदी में लिख ली थी। उसके अलावा मेजरली चीजें कॉमन थी, वो एडजस्टमेंट रेपिटेटिव थी। तो मैंने उस रेपिटेटिव चीजों का एक समरी में एक पेज बना लिया और मैं उसी को बार बार पढ़ती रहती थी, और फिर कुछ जो और इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो लिख लिए। इस तरह से मैंने अपने पीजीपी चैप्टर को छोटा कर लिया। ऐसे ही टीडीएस को छोटा कर लिया, किस तरह के क्वेश्चन, कौन कौन से सेक्शन ऐसे जिससे बार बार पूछा जा रहा है। ऐसी सैलरी में कुछ वो स्पेसिफिक चीजें होती है जिसको बार बार पूछा जाता है, तो वो जो चीजें रेपिटेटिव पूछी जा रही है ना क्वेश्चंस के थ्रू, उन्हें ज्यादा पढ़ो। पहली टिप ये है, एबीसी एनालिसिस करो। उस एबीसी में भी उन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है वो आप क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ो। उनका एक समरी बनाने की कोशिश करो। समरी में आपको लगेगा मेरे को लिखने में टाइम लग रहा है, पर वो जो आपका 1 डे बिफोर एग्जाम होगा ना, वो सुपर इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको वो दिन आसान कर देगा ये समरी बनाना।
जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखो, हाई फाई बहुत सारी चीजें लिखो, समरी का मतलब ही है कम से कम शब्दों में आप उस चीज को कैसे खुद को समझा सकते हो एक दिन पहले। वो हिंदी में लिख के अब मैंने जब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करा पहले अपने दिमाग में कि ये कुछ बातें हैं, बस ये कुछ बातें मुझे ध्यान रखनी है, चाहे वो सीए फाइनल का बल्कि सा एफआर हो, चाहे वो पूरा डीटी हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ये कुछ बातें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है कि चीज प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, और फिर मुझे उस दिन एग्जाम वाले दिन उसको बस लिख कर आना है। और यहाँ सीए में आपका ग्रामर तो चेक हो नहीं रहा है, तो अगर आप थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश में भी बनाकर आगे आप मतलब बता पाए कि ये मतलब है इस सेक्शन का कि मैंने प्लस करा है तो मैंने ये इसलिए प्लस करा है, बस इतना वहां पर लिख कर आना है, जिसे हम वर्किंग नोट्स बोलते हैं। तो आपको समरी बना के अपने दिमाग में चीजें रिजॉल्व करनी है, और पेपर में वाइवा नहीं हो रहा है, समरी नहीं पूछी जाएगी, वहां प्लस करा माइनस करा उसके साथ वर्किंग नोट भी लिख कर आना है उसका, इतना करना है। तो ये हुआ आपने पढ़ा एक स्मार्ट तरीके से। रिविजनरी वीडियो का यूज कैसे करना है, अब क्या आपने रिविजनरी वीडियो चलाया, ऐसे नहीं चला दिया मंत्र मुग्ध होके अपना ध्यान में कहीं और चले गए, शरीर यहाँ बैठा है दिमाग इधर उधर घूम रहा है, वीडियो कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। अभी तक आप ऐसा ऐसे पढ़ते हो, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ना है, मैं रिविजनरी वीडियो सुनती थी, एक तो मुझे मई वाले अटेम्प्ट से थोड़ा ऐसा लगता है भाई बहुत नींद आती, आप बैठे हो और आप कब नींद में प्रवेश कर गए आपको पता ही नहीं है। तो इससे बचना है, हाँ नहीं करना है इस बात पे, ठीक है। एसी चला के बैठ के पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, लेटे थोड़ी देर बाद सो ही गए, अब नींद में सपने में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वॉक करते करते पढ़ाई करो, और प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, सुपर इंपॉर्टेंट है हाइड्रेटेड रहना। वॉक करते हो, शाम के टाइम मैं टेरेस पे चली जाती थी, जब भी जैसे थोड़ी धूप कम हो गई मैं टेरेस पे जाके अपना वॉइस वो और वो प्लग करती थी, ईयरफोन्स, वो चला लिया मैंने वीडियो। एक तो जब आप वॉक करते करते सुनोगे तो आप स्क्रॉलिंग नहीं करोगे, मतलब फोन को आपने अपने रख दो, बस उसको अपनी चला ली ना वीडियो, अब उसको रख दो, पॉकेट में डाल लो उसको। और फिर मैं सुनती थी, मैं एक सेकंड पॉज करके, जैसे लॉ का मैं कोई सेक्शन का वीडियो सुन रही हूँ, अब जो भी सेक्शन आने वाला है, लेट्स से अभी रिलेटेड रिलेटेड पार्टी का सेक्शन आने वाला है, आप क्या करते हो, आप पूरा सेक्शन सुनते हो मजे से, फिर आपको भूल गए, आपको क्या पता क्या सुना आपने। मैं पॉज करती थी, जैसे ही उन्होंने बोला कि अब ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे, मैंने उसे पॉज करा, मुझे पहले जितना याद है उस सेक्शन के बारे में, हिंदी में ही सही, मैंने मुझे जितना याद है, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि इस सेक्शन में ऐसा है ऐसा है, ये सब सेक्शन है, मेजरली ये चीजें मैंने सारी बोल दी। फिर मैं उसको 2x पर जल्दी जल्दी या 1.75 1.5 पर सुन लेती थी। अब जब मैंने ऐसा करा, यू रिमेम्बर इंग्लिश में और 12th में भी यूज्ड टू डू अनसीन पैसेज, कुछ बच्चे क्या करते थे, पूरा अनसीन पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइम खराब करते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे फिर वापस अनसीन पैसेज पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा। स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज ऐसे ही पढ़ाई करनी है। स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्या क्वेश्चन है, जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, फिर आप अनसीन पैसेज पर जाओगे ना, आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उस आंसर का ही, उस क्वेश्चन का ही आंसर ढूंढ रहा होगा उस पूरे पैसेज में। अब आप टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, अब आपने इस दिमाग से पैसेज पढ़ा, आपका बहुत टाइम सेव होता अगर आप ऐसा करते तो। बस ऐसे ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आपको कॉन्फिडेंट अभी फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ना सारा अनसीन पैसेज पढ़कर बैठ गए हो। अब आपको मन में डर लग रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वापिस अनसीन पैसेज पर जाएंगे पढ़ने, और अब अनसीन पैसेज वो इतू सा नहीं है, अब वो बहुत सारी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप इस बचे हुए टाइम में क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपका दिमाग सबकॉन्शियसली ना उस रिविजनरी वीडियो में से भी उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा कि ये सेक्शन क्या बोल रहा है, इस सेक्शन का क्या मतलब है, कैसे लग रहा है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। ऑडिट में किसी ने भी पूछा था ऑडिट कैसे पढ़ना है, ऑडिट में ज्यादातर बच्चों के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि ऑडिट अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, ऑडिट तो एकदम सौतेले की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऑडिट में आप पढ़ते हो उसको थ्योरी की तरह, कि एक पढ़ लिया हमने, कहानी हुई, टीचर ने फन तरीके से आपको सेक्शन समझा दिया, आपको बड़ा मजा आ गया, ऐसे आपको यूं चुटकियों में याद है। अब जब क्वेश्चन आता है, आपका दिमाग रिकॉल ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता कि ये कौन से ऐसे का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सारा कुछ सेम दिख रहा है अब। तो इसलिए आप बेटर स्कोर करते ऑडिट में या लॉ में जब आपको ये पता हो कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आप ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप वही चीज देख पाओगे कि सेक्शन ने क्या बोला। अब आप समझे वेयर यू आर लैकिंग। हम एक अलग ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हैं, जबकि अभी थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है। ओके तो आप अब ना जितने बचे हुए दिन हैं, आप उसमें सिर्फ इतना एग्जाम्पल याद रखो, अनसीन पैसेज वाला जो मैंने बोला, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा पढ़ने का। मेरा एफआर इतना स्मूथ हो गया था पढ़ना, मैंने 2 महीने में, मेरा एग्जामिशन खत्म हो गई थी एफआर की, मैंने 2 महीने थे मेरे पास,
पहले सिर्फ 3 पेपर देने थे, एग्जामिनेशन लैप्स होते ही FR भी पढ़ना था। आई जस्ट हैड 2 months इन हैंड में सारा नया का नया स्टडी मैट उठाकर लाई, स्टडी मैट FR 6 मॉड्यूल आए थे, बिना किसी कोचिंग के मैंने पढ़ाई करी FR में। पहले ABC एनालिसिस करा, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़े, कंसोलिडेशन इतना बड़ा चैप्टर मैंने नहीं पढ़े, छोटे 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 एग्जाम्पल जाके। CA फाइनल का FR, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, उसमें कंसोलिडेशन सबसे बड़ा चैप्टर है और उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, मतलब शुरू होंगे तो पता ही नहीं चलेगा आप हो गए बीच में, बहुत सारे क्वेश्चन। बच्चा कहाँ गलती करता है, वो उठाता है सबसे छोटा क्वेश्चन, मतलब अभी जोश है उसमें, सबसे छोटा क्वेश्चन उठाएगा, फिर एक 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 एग्जाम्पल करेगा। जब तक बड़ा एग्जाम्पल तक बात आएगी ना, उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी कि भाई अब नहीं हो रहा, और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वही बड़ा वाला जो आप छोड़ के गए थे, तब आपको होगा रिग्रेट। तभी मैंने देखा टेस्ट और नॉलेज में से क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन, और मैंने छोड़ गई थी स्टडी मैट में क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, मैं टेस्ट और नॉलेज में पहुंचते पहुंचते थक चुकी थी। बी स्मार्ट, आप बड़े क्वेश्चन से शुरू करो। जब आप बड़ा क्वेश्चन करते हो, उसमें जो आगे छोटे वाले एग्जाम्पल दिए हुए थे टेस्ट और नॉलेज के, वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। बड़े वाले क्वेश्चन में छोटे वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, जब आप बड़ा वाला पढ़ोगे तो आपको छोटा वाला उसमें ऑलरेडी कवर हो गया है। तो आपको इस तरह से, अब ये जो बचे हुए दिन है ये कम नहीं है अगर आप स्मार्ट हो तो। और अगर आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ो तो आपको 1 साल भी कम लगेगा, क्योंकि आप पढ़ तो लोगे, वो पढ़ा हुआ इतना सारा उसे समेटोगे कैसे एक दिन पहले, और जब एक दिन पहले आप नहीं समेट पाए, आपको बैक ऑफ द माइंड कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो मेरे दिमाग में पढ़ते टाइम सिर्फ एक बात थी, ये नहीं कि अरे इतना सारा सिलेबस है, अरे कैसे होगा, मुझे स्ट्रेस हो रही है। मेरा ये था, अगर ये 6 किताबें हैं FR की, तो मैं ऐसा क्या स्मार्टनेस से पढ़ाई करूं कि वो एक दिन पहले ना मेरे पास कम से कम शब्दों में मेरे को सब रिवाइज हो जाए। तो जब भी मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रही थी, मेरा पॉइंट ही ये था, मेरा फोकस पॉइंट ही यही था कि इसको छोटा कैसे कर लूं। CA फाइनल लॉ में फॉरेन कंपनी चैप्टर है, या डायरेक्टर हो, या कोई भी चैप्टर हो, डायरेक्टर का तो चलो समरी नोट मुझे मिल गए थे फैकल्टी से, उसके अलावा जो भी चैप्टर थे उसके मैंने कोशिश करा कि मैं 1-2 पेज में कैसे समरी बना सकती हूँ पूरी, कि मुझे बाद में सिर्फ वो 2 पेज उठाने पड़े, बस उसी में छोटा 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 करके लिख लिया। अगेन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस वहां पर लिख लिए। मेरे लिए रिवाइज करना बहुत आसान हो गया था ऐसे करके। तो ये टाइम ना स्ट्रेस लेने का नहीं है, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करने का है। उसको चेंज करते ही जैसे आपने फोकस शिफ्ट करोगे ना, अब जो फिर अगर आप मेरे वाले जो मैंने तरीका बताया, अगर आप उसको अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा इंटीग्रेट करोगे, तो आपको ना मजा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दिमाग को ना प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। जब आप पूरे दिन बहुत अच्छा सा पढ़ते हो तो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है कि आज तो मजा आ गया, हो सकता है मैं पास ही हो जाऊं इस बार, कितना बढ़िया लगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और जिस दिन आप नहीं पढ़ते हो, उस दिन आपको दुनिया भर का स्ट्रेस की सेशन लेने की जरूरत पड़ जाती है। उस दिन आपको लगता है किसका तो वीडियो देख ले, क्या कर ले, कुछ नहीं समझ आ रहा है, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ओहो मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, क्या करें। आपको बस अपना अप्रोच चेंज करना है, ताकि आप खुद से ही खुद को मोटिवेट करते रहो कि यार ये पढ़ते हैं ना, ये रिकॉल करते हैं, जल्दी से रिकॉल करते हैं, तो वॉक करते रहो, वॉक करते करते रिकॉल कर लो। मैं वॉक करती थी, पूरा पहले पॉज करके पूरा चैप्टर रिकॉल करने की कोशिश करती थी कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसमें ये हुआ ये हुआ, फिर वापस से सुना कि फिर 2x पे मैं जल्दी जल्दी, मेरा अब मेरा दिमाग ना क्यूरियस है कि मैंने जो बोला सही बोला क्या, कहाँ कहाँ मेरा क्या क्या मिस हुआ। अब वो मिसिंग पॉइंट्स ढूंढ रहा है उसी वीडियो में से जिसको उसको आफत लग रही थी 2 घंटे की वीडियो को सुनने में। अब मेरा माइंड अच्छे से उसको सुन पा रहा था, एंजॉय कर रहा था, क्योंकि अब वो उसको क्यूरोसिटी थी कि मैंने क्या क्या तो पूरा बोला, क्या क्या कम था। अब अप्रोच ही चेंज हो गया माइंड का। अब मेरा माइंड मुझे स्ट्रेस, ओहो अभी 2 घंटे का वीडियो सुनना पड़ेगा, ये सब नहीं कहेगा। अभी वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी सुनेगा कि कहाँ कहाँ मिसिंग पॉइंट थे। और जब मुझे मेरे दिमाग में पता चलेगा कि मेरे मिसिंग पॉइंट बहुत कम थे, मैं ज्यादा चीजें रिकॉल कर पा रही थी खुद, नाउ आई फील कॉन्फिडेंट, नाउ आई वोंट बी स्ट्रेस्ड आउट, नाउ आई बी इन अ पोजिशन कि चलो इतने नंबर का आएगा तो मैं इतना तो लिखी आऊंगी, इतना तो मुझे याद है। आपको ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए इस टाइम पे, मोटिवेशन नहीं चाहिए। तो इसलिए ऑल्दो माय सेशन वाज स्ट्रेस मैनेजमेंट, बट आई वाज मोर फोकस्ड ऑन गिविंग यू द प्रैक्टिकल पॉइंट्स कि अब करना क्या है। अभी मैं मोटिवेट कर दूंगी, उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वापस से सो के उठोगे, मोटिवेशन सफा, वापस से आप सेम। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं बहुत, पता नहीं, मैं 1.5 की स्पीड पे बोल रही थी शायद। आई वांट टू टेल यू मेजरली सारी चीजें। इसके बाद आपको कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, क्योंकि इनका आई गेस देयर इज सम एपिसोड 2 आल्सो, कुछ तो है और अलग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्विकली आस्क। और बहुत बड़ा सारा सारा बहुत बड़ा बना मत लिखना, मुझे पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन तो सारा। जल्दी से बता दो क्या क्वेश्चन है।
ऊपर किसी का बहुत बार एक मैसेज आया था, हेलो मैम, सेलेक्ट एज बैंक ऑफिसर, योर वीडियोज हेल्प अलॉट। आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच, मीन्स अलॉट, गॉड ब्लेस यू। इट जस्ट दैट मीटिंग विल एंड एट 7। ओके ओके, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं अभी। अरे करो भाई, फ्रेश स्टार्ट करो, पूछने में समय मत, इस टाइम पे ना एक एक पल कीमती है, आप इतना ध्यान रख लो। आप मुझसे लिख के ले लो, अगर आप पूरा टाइम पढ़ाई कर रहे हो, इफ यू आर ऑनेस्टली स्टडिंग, तो यू स्टिल हैव इनफ टाइम। और अगर आप वक्त खराब कर रहे हो तो 1 साल भी कम है। आई एम फीलिंग वेरी अलोन नॉट हैविंग फ्रेंड्स। अरे भाई पढ़ लो, कौन है जिसको दोस्त चाहिए, इस 15 दिन एग्जाम के बचे हैं। आपका नेक्स्ट वर्कशॉप कब होगा? आई विल कीप यू पोस्टेड थ्रू माय सोशल मीडिया प्रेजेंस। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इतनी वर्कशॉप में ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया था, अभी हेलो बोलने आए और ब्लेसिंग्स लेने। जून में सेल्स एग्जीक्यूटिव एग्जाम, सेंडिंग ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द सक्सेस योर वे गौरव। थोड़ा सा एक बार सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए बता दो। मैं बता देती अगर मुझे पता होता कि चैप्टर्स मतलब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आई रियली डोंट नो। हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस ऑफ नॉट कंप्लीटिंग लेक्चर। ओके, अब इसमें कुछ लोग होंगे जिनके लेक्चर्स चल रहे हैं, उन्होंने वो भी पूरे नहीं करे हैं। अब इसमें क्या करना है, अगेन आपके पास लेक्चर है तो हमको ना गिल्टी फील होता है कि अगर मैंने सारे लेक्चर नहीं देखे तो मेरे पैसे खराब हो जाए। तो आप इस टाइम पर क्या करो, इस टाइम पैसे का मत सोचो यार, एबीसी एनालिसिस करके देखो। इफ दैट लेक्चर कम्स अंडर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर एबीसी एनालिसिस, सो ऑफ कोर्स आपको वो पूरा करना है। और उसमें भी अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर का, लेट्स से कोई ऐसा ऐसा सेक्शन है जिससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है और वो अमेंडमेंट वाला सेक्शन भी नहीं है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, तो आप उसे छोड़ सकते हो अभी। पर अगर वो ऐसा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको समझ नहीं आया, तो उसको जल्दी जल्दी स्पीड करके देखो। अब लेक्चर में इस टाइम पे ये मत देखना कि पूरे पैसे को मुझे वर्थ इट करना है तो सारे लेक्चर बैठ के देखूंगी। एग्जाम के बाद देख लेना अगर वर्थ इट करना है तो। अभी योर फोकस शुड बी ऑन एग्जाम्स ओनली। एग्जाम्स, अभी एग्जाम्स का सोचना है पहले, बाकी सब चीज सेकेंडरी है इस टाइम पर। क्लटर है माइंड में बहुत। मैंने अभी एक वीडियो बनाया चैनल पे, आई गेस 6 बजे लाइव हो गया होगा, व्हाइल आई वाज इन द सेशन। वो इसी के ऊपर है, प्लीज वॉच दैट वीडियो, दैट विल हेल्प यू आउट। लव यू मैम, लव यू टू। Ma'am, हाँ जी हाँ जी, अपेक्षा। sorry to interrupt. Actually, there नहीं was नहीं a अपेक्षा, common बताओ बताओ, question. आपने कुछ लिखा भी था, बताओ। Yes, ma'am. Actually, there was a common question for some students that how हम्म। to, are there any some practical tricks or techniques to manage exams? योर वॉइस इज ब्रेकिंग अपेक्षा, आई कुडंट लिसन यू। बच्चों का कॉमन क्वेश्चन था कि बाद मिस हो गया थोड़ा सा। Am I audible, ma'am, now? यस यस। Some common techniques to manage stress during exams. Practical techniques. ओके, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। सबसे पहले तो ये है कि प्लीज इनकॉर्पोरेट मेडिटेशन इन योर रूटीन। पूरा मैंने वीडियो बनाया है इसी बारे में। ये आपको लगेगा कि अरे नहीं नहीं कुछ और बताओ, इसमें मजा नहीं आया, इसमें तो हमको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एफर्ट तो भाई जीवन में एफर्ट डालना ही पड़ेगा, पढ़ने के लिए भी एफर्ट डालना है ना। तो जब पढ़ना ही है तो शांत दिमाग से क्यों ना पढ़े। एंड शांत दिमाग कैसे होगा? मेडिटेशन करके। और वो भी खुद से, आपको नहीं ऐसा पहाड़ों पे जाकर मेडिटेशन नहीं करना है। देयर अ वीडियो, मैंने अभी जो आज वीडियो पोस्ट करा है चैनल पे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, विपासना मेडिटेशन के नाम से। दैट्स अ 36 मिनट्स वीडियो। इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू अफोर्ड 36 मिनट्स, क्या मेडिटेशन में दो, एटलीस्ट डू हाफ ऑफ इट। और इसको आप 2 बार कर लो, या जब भी स्ट्रेस्ड आउट हो तब उसको कर लो, दैट विल हेल्प यू आउट। और उसके बाद जो Thank you. बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होता है, थैंक यू अपेक्षा, उसके बाद एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। किसी के बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, अपेक्षा प्लीज लुक इनटू इट। अच्छा आपके से ही आ रहा था। डन डन, रिजॉल्व रिजॉल्व। हाँ, इसके बाद एक और बहुत ही कॉमन होता है कि व्हाट इफ आई फेल इन द एग्जाम। इतना कुछ करने के बाद मैं फेल हो गई तो क्या होगा। हाँ देखो, इशिता ने यही लिखा, मैं आगे यही बोलने ही वाली थी कि अगर मैं इतना कुछ करने के बाद भी फेल हो गई तो क्या, क्योंकि मैंने पिछली बार भी तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, पिछली बार भी मैं फेल हो गई थी, अब इस बार भी क्या होगा। अगर मैं फ्यूचर को पास्ट के चश्मों से ही देखती रहूंगी तो फ्यूचर पास्ट जैसा ही दिखने लग जाएगा। वाह 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 वाह। ट्राई अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ इट। मतलब कल को ऐसा हो जाए तो, मतलब इट्स लाइक कि यार कल ना मैं सीढ़ी चढ़ रही थी, फिसल गई थी, अब मैं कभी जीवन में सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी अपने घर की। आई बी लाइक यार कल फिसल गई थी भी थोड़ी को रोज ऐसी हो जाएगा। क्या रोज ऐसा हो सकता है? दूसरी चीज, क्या ये एग्जाम्स में हम, ये एग्जाम्स है, म्यूजिकल चेयर नहीं कि आप एक बार गोल गोल घूमे थे, आपका चेयर हट गया तो नाउ यू कांट सिट अगेन,
या वापस से आपके साथ वही होगा कि नहीं नहीं एक बार तुम फेल हो गए, हट जाओ यहाँ से, दिख मत जाना दोबारा, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना ऐसा। आप अगर अभी अभी सेशन तक की बात करो, अभी इस सेशन में आपने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी होंगी जो आपने पिछली बार नहीं करी थी, एम आई राइट? कुछ तो आपने नया सुना होगा जो आपने पिछली बार नहीं करा था। हो सकता है आपने पिछली बार सारी पढ़ाई करी थी पर स्ट्रेस लेकर करी थी, इस बार आप मेडिटेशन इनकॉर्पोरेट कर लो। हो सकता है पिछली बार आपने सारी पढ़ाई करी थी, टेंशन लेकर करी थी सारी, और आपको यही डर सता रहा था पास नहीं हुई तो क्या, अरे यार कहाँ फंस गए यार, ये बुक्स में कहाँ ही, मेरी तो पूरी जवानी चली गई है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रही हूँ, ये सब विचारों के साथ आपने पढ़ाई करी थी। इस बार आप ये सोच के पढ़ाई कर लो कि यही एग्जाम्स हैं जो आगे मेरी लाइफ को बहुत 360 डिग्री चेंज करने वाला है। लुक एट समबडी हु क्वालिफाई, उसका अपीयरेंस बदल जाता है, उसका लुक बदल जाता है, द वे दे ड्रेस अप इट चेंजेस, द वे दे आर लुकिंग इट चेंजेस, द वे दे टॉक इट चेंजेस। एक डिग्री और जब इंसान कमाना शुरू करता है उसका पूरा का पूरा वो बदल जाता है, लुक बदल जाता है, उसका पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो आप कैसे कमाने वाले हो अपने लाइफ में इस एग्जाम को देके? तो ये एग्जाम एक सिर्फ ऐसा कर्स करने के लिए कोई चीज नहीं है, दिस इज समथिंग विच कैन ट्रांसफॉर्म योर एंड योर फैमिलीज लाइफ। तो पिछली बार अगर आपने थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से एग्जाम दिया था, इस बार आप इस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करो, एग्जाम दो। सो चेंज समथिंग। अगर आप वही करते रहोगे जो पहले करते आए थे तो रिजल्ट वही मिलेगा जो पहले मिलता आया है। सो चेंज, यू नीड टू चेंज समथिंग हेयर, मेंटल लेवल पे चेंज करना है कुछ। और मैंने जो प्रैक्टिकलिटी टिप्स जो चेंज करने के हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी जो रिजॉल्व करना है मेंटल लेवल पे करना है। ओके? और मैं सारा कुछ और इतना करा फिर भी नहीं हुई तो, अब अगर जब आप पॉजिटिविटी या मेडिटेशन अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे तो भी एकदम से आपका नेगेटिव थिंकिंग बंद नहीं हो जाएगा। आपको ऑड मोमेंट्स पे फिर भी लाइक जैसे कुछ जब कुछ रिकॉल नहीं कर पाओगे, कुछ याद नहीं आएगा, कुछ सॉल्व नहीं होगा, तब आपको एकदम से माइंड में पॉपअप होगा कि यार नहीं हुआ तो, कहीं वो ऐसे ही तो नहीं कह रही थी, खुद पास हो गई थी तो ऐसी हमें तो कुछ भी झूठ मूठ आके तो नहीं बोल के चली गई है। ऐसा शक वक होता रहता है ना खुद पे दूसरों पे, आम बात है ये। पेपर छोड़ दूं क्या, ना दूं तो क्या हो जाएगा, फेल हो गई तो घर वाले क्या कहेंगे, रात को 3 बजे बैठ के ऐसा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फेल हो गई तो क्या होगा, घर वाले तो शादी के लिए भी कर रहे हैं, लड़का भी ढूंढ रहे हैं, इतने अटेम्प्ट पहले ही लग गए हैं, पड़ोसी भी जज करेंगे, दोस्त भी पता नहीं आगे निकल जाएंगे, मेरा दोस्त बात नहीं कर रहा शायद पक्का पढ़ रहा होगा, ये सब आप बाद में देखोगे, यू लाफ ऑन इट कि मैं क्या सोच रही थी, पर उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज है ये। उस टाइम में इतना बड़ा मुद्दा है, आपको लग रहा है दूसरे समझ नहीं रहे, इतने बड़े में ओवर थिंकिंग से गुजर रही हूँ। आपके दिमाग में बहुत बड़ी चीज है पर वो असली में इतनी बड़ी चीज नहीं है। उस टाइम पे आपको सिर्फ खुद को इतना याद दिलवाना है कि जो भी कुछ आपका माइंड बता रहा है वो सब सच नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन करने को बोला है कि आपका दिमाग शांत रहे, वो कुछ बोले ही ना। वो जितना कम बोलेगा आपका दिमाग उतना ज्यादा आप काम कर पाओगे, वरना वो बोल के आपको उलझाए रखेगा, वो आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे रहोगे तो आप अपना प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाओगे। यही रीजन है कि मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। ऐसे ही तो नहीं बोलती हूँ कि मैंने जब से 2021 से वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है, तब से 2024 हो गए, 3 साल से एक ही चीज बोले जा रही हूँ, तो कुछ तो करा होगा ना उस चीज ने मेरी लाइफ में जो मैं सबको बोल रही हूँ अब। ठीक? तो यहाँ जो चल रहा है उस पर इतना विश्वास नहीं करना है, वो झूठ बोल रहा है दिमाग, पास्ट का डेटा उठाकर आपको वही बता रहा है कि आगे भी ऐसे ही होगा, ट्रस्ट मी आगे ऐसा नहीं होगा। योर लाइफ कैन बी रियली 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 ब्यूटिफुल अगर आप दिमाग पे विश्वास ना करके ऊपर एक शक्ति है उस पर विश्वास करें। और एक Thank you लास्ट so स्टेप में much, देना ma'am. चाहूंगी अपेक्षा। हाँ अपेक्षा, आई नो यू आर वेटिंग फॉर योर क्लोजिंग रिमार्क्स और 2 मिनट में सेशन बंद हो जाएगा। जस्ट अ लास्ट थिंग आई वांट टू से, लास्ट थिंग, आपको कभी भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, रात हो रही है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप सबके घर में एक मंदिर होगा, एक भगवान की प्रतिमा आप अपने सामने रखते हो, जैसे मेरे यहाँ पर हनुमान जी हैं, पहले मेरे रूम में गणेश जी की बड़ी सी फोटो थी। आप कितने एथिस्ट क्यों ना हो, मैं भगवान को नहीं मानती, ये सब नहीं होता, आई अग्री, नहीं होता होगा, ठीक है, 15 दिन के लिए करके देख लो, मतलब नहीं भी होता होगा तो बुरा तो कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। 15 दिन के लिए ऐसा सोचो, मतलब कभी भी टेंशन हो ना, मैं मंदिर के सामने जाती थी, मैं सब बताती थी, यार देखो मेरे पास इतना टाइम था, मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा, इतना मैंने करा है, मैंने सारा पढ़ लिया है अपने हिसाब से, अब जो होगा ना वो आप देख लेना। मेरा सिर्फ इतना कहना यूज टू काम मी ऑन अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि अब मुझे लगता था कि मेरा ये एक चेकलिस्ट थी, मैंने ये करा है, अब पेपर कैसा आएगा, मैं रिकॉल कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, चेकिंग कैसी होगी, उस दिन क्या होगा, ये सब मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड चीजें। तो जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, आई डिसाइडेड कि मैं उस पर टेंशन भी नहीं लूंगी।
तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि ये मेरे हाथ, मेरे कंट्रोल में चीजें हैं, ये मैं करूंगी, और ये सब मैंने एक एज्यूम करा कि एक भगवान है, हमने टास्क उनको दे दी, क्योंकि ना मुझे पता उस टास्क का क्या होना है, ना मुझे पता भगवान है नहीं है। तो मैंने कहा ये दोनों अनसर्टेन चीजें आपस में डील कर लो, आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन समथिंग कि जो जो मेरे कंट्रोल में है। इसने मुझे मिराक्युलसली हेल्प करा है। So please do that also. On that note, this is Yenetta signing off for this session. Now over to Apeksha. Thank you so much, everyone. Thank Hari you so Apeksha. much, ma'am. Anji. Yes, ma'am. I would like our Vice Chairperson, Manas, to conclude the session. Manas, you are on mute. Yes, 1 second. On behalf of our entire Vikasa committee and all the students present here, I would like to extend a gratitude to Neha Datta ma'am. Your presence here today have been invaluable. Your guidance drawn from your rich experience has been much value to us. Despite of your wedding preparations going on, you have spent generous time with us. We are very grateful to be and conduct this session with you. We would love to conduct another session after the exams. For sure. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. All the best, everybody. Thank you so much. Bye-bye. Bye, ma'am.